मोहम्मद जिस वक्त के आए उनके पास रसूल इजाजल भेजा लेना है मुस्लिम तो पैगंबर फकत मोहम्मद पर झुकाए रहूं उन लोगों को फाज का जब उसको दिए के साथ से के फकालू पर काली में धाकी करे तो तुम्हारे मुरसलुल रसूल से है कालू कहां उन्होंने मांग तो नहीं तो इल्ला मगर बशरुल रसूल हो इस वाला मिसाल हमारे वमा अंजला रहमान और नहीं मान के हमारे नबी शहीद कुत्ते इन अंत नहीं तो इल्ला मगर कर जो झूठ बोलते कालू कहां उन्होंने रब हमारे यार जानता ही का धाकी करे तो तुम्हारे मुरसलुल रसूल से है वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन वमा और नहीं ऊपर हमारे मगर पहुंचा देना पैगाम जाहिर और नहीं ऊपर हमारे मगर पहुंचा देना पैगाम जाहिर कालू कहा उन्होंने धाकी ततैया में बशरू के साथ तुम्हारे लैलन दन तो अपना बात है तो लंदन में करने को मतलब संसार करेंगे उनको बोला या मसन का मतलब तुमको बिना हमारी तरफ से या वो आदमी या करने वाला और कहा उन्होंने ताज को साथ तुम्हारा एक जो तुम क्या नसीहत दे जाते हो तुम
যাই হোক, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ মুরিদ হতে চান, আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মুরিদ হতে চান তরিকা কাদিরিয়াতে, খানদান কাদিরিয়াতে, তো ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনারা মিম্বার শরীফের পাশে চলে আসুন আর নিজ নিজ নাম লিখিয়ে ওজিফা এবং দলিল হাসিল করুন। आप हाजा से गुजारिश है जो लोग तरीका कादिरिया में, खानदान कादिरिया में मुरीद होना चाहते हैं, मुर्शिद सलाम फरमान अहमदी साहिब से आप लोग मिम्बर शरीफ के नजदीक चले आइए और अपना अपना नाम लिखा कर वजीफा और दलील हासिल कीजिए। दोस्तों बोलो যাই হোক, আজ ইনশাআল্লাহ তাআলা আজ আমরা এক জায়গায় জামাত হয়েছি। আজ আমরা এক জায়গায় জামাত হয়েছি আল্লাহ রাসূলের মহব্বতে, কোরআন শরীফের মহব্বতে, দ্বীন ইসলামের মহব্বতে। আজ আমরা পবিত্র দরবার শরীফে, পবিত্র হুজরা শরীফে হাজির হয়েছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হাজির করেছেন কোরআন শোনার জন্য, কোরআন রহমত শোনার জন্য। কোরআন শরীফের উপরে আর কোনো কিতাব নেই, কোরআন বায়ানের উপরে কোনো জিনিস নেই, কোরআন কিতাবের উপরে কোনো কিতাব নেই। কোরআন হচ্ছে আল্লাহর আসমানি কিতাব, রহমানি কিতাব। আর যে কারণে, যে উদ্দেশ্যে আমরা কোরআন শোনার জন্য হাজির হয়েছি, আজ ইনশাআল্লাহ তাআলা যে মজলিসে, যে জলসাতে আমরা হাজির হয়েছি, এই মজলিসে, এই জলসাকে কায়েম করা হয়েছে হাতিয়া শরীফের পীর জামাল মুজাদ্দিদ জামান কামিল মুর্শিদ কিবলা হুজুর আল্লামা আলিম হক্কানি রব্বানি হযরত মাওলানা ওয়া মুর্শিদনা সাইফুল মাশায়েখ হযরত সৈয়দ শাহ ফরহা কামালি সুফি মুফতি মীর পীর শরিয়তি তরিকতি হাকিকতি ওয়া মারফতি সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি আপনি দুনিয়া থেকে রেহলাত করেছিলেন, দারুল ফানা থেকে দারুল বাকা থেকে তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন অগ্রহায়ণ মাসের 17 তারিখ। কিন্তু আমরা অগ্রহায়ণ মাসের 13 তারিখে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা এই উরুস মোবারককে মানাচ্ছি। তো যাই হোক, এই উরুস মোবারকে সুফি ফরহা কামালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হাজির আছেন, আর সমস্ত আউলিয়া আম্বিয়া হাজির আছেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, মশরিক, মাগরিব, জনুব, শিমাল যত আউলিয়া আল্লাহ আছেন সকলেই এই জলসায় হাজির আছেন। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালামের জামানা থেকে নিয়ে আখেরি জামানার পয়গম্বর জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলেই হাজির আছেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা জিন্দা যারা আছি দুনিয়ার হায়াতে আমরাও হাজির আছি, আর আমাদের খানদান বংশের পক্ষ থেকে যারা ছিল কানের রাস্তে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, আওয়াজিনা আর আসিবেন না, যদি আল্লাহ চায় তো আসবেন, ওনারাও এখানে হাজির আছেন। জিন্দা এবং মুর্দা সকলেই এই জলসায় হাজির আছেন কোরআন শোনার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিন্দা এবং মুর্দা সকলের উপরে অশেষ রহমত করবেন। সুবহানাল্লাহ। সকলেই এই মজলিসে হাজির আছেন। কোরআন এমন একটা জিনিস আছে, কোরআন এমন একটা জিনিস আছে যারা জিন্দা কাদের কাজে লাগে, আর যারা মুর্দা তাদের জন্য কাজে লাগে। সুবহানাল্লাহ। জিন্দা এবং মুর্দা সকলের জন্য কোরআন রহমত আছে। সুবহানাল্লাহ। এই অবস্থা আমরা হাজির হয়েছি। আর যে জায়গায় যে জলসায় কোরআনী মজলিস হয়, কোরআনী জলসা হয়, মিলাদুল নবীর জলসা হয়, সেই জলসা খোদার নূর থেকে চমকায়। সুবহানাল্লাহ। की कमी है, खताए फाहम है, मोहम्मद को नादान बशर जानते हैं। समझ की कमी है, खताए फाहम है, मोहम्मद को नादान बशर जानते हैं। बशर मिसलकुम बसर तो नहीं है,
बसर मिसलकुम बसर तो नहीं है किसी मर्द जमर का किधर हो नहीं है ये ऐसा है पर्दा सुल्तान दी का भला जिब्राइल क्या खबर जानते हैं भला जिब्राइल क्या खबर जानते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना दीन दिया इस्लाम दिया और पढ़ने को कुरान दिया और पढ़ने को कुरान दिया बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नहीं छुटता ये काफिर दिल जात का नहीं छुटता ये काफिर दिल जहाँ भटका मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू कुछ मर्तबा चाहिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू कुछ मर्तबा चाहिए होता है इंसान कामिल हस्ती मिट जाने के बाद होता है इंसान कामिल हस्ती मिट जाने के बाद सुरखरू होते हैं इंसान सुरखरू होते हैं इंसान हस्ती मिट जाने के बाद रंग लाती है हेरा पत्थर पर घिस जाने के बाद रंग लाती है हेरा पत्थर पर घिस जाने के बाद रब सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह रब सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह हाय खुदा हम दरूद व सलाम हाय खुदा उस नबी पर हो बार बार आमीन अल्लाहुम्मा आमीन আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মুরিদ হতে চান আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মুরিদ হতে চান আপনারা সুফি সালাম পরওয়া কামলি সাহেবের কাছে মুরিদ হয়ে যান বিবনা শরীফের কাছে চলে আসুন নিজ নিজ নাম লিখিয়ে ওলিফা এবং দলিল হাসিল করুন आप हजरत से गुजारिश है जो लोग मुरीद होना चाहते हैं तरीका कादिरिया में मुफ्ती सलाम परवा कामली साहिब से आप लोग बिरला शरीफ में जल्दी चले आइए और अपना नाम लिखा कर वजीफा और दर्ज हासिल कीजिए और जो लोग अभी आए हैं हुजूर बिरला से मुलाकात कर लीजिए हुजूर बिरला हुजूर शरीफ में आज ये मौजूद है आप अपना जरा कोई सेकंड हुजूर बिरला से साक्षात कर लीजिए हुजूर बिरला हुजूर शरीफ में बसे आছেন
আপনারা সাক্ষাৎ করে নিন হুজুর কিবলার সঙ্গে। আর হুজুর কিবলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনারা কোরআনী জলসায় কোরআনী মজলিসে এসে কোরআন শুনুন। দুরূদ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আতনাবি মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি अल्लाह के नूर से अल्लाह की जमीन चमक रहा है। अल्लाह के नूर से अल्लाह की जमीन चमक रहा है। वो जमीन चमक रहा है कि जिस जमीन में अल्लाह के वली हाजिर मौजूद है। वो जमीन चमक रहा है कि जिस जमीन में अल्लाह के नबी रसूल मौजूद है। और वो जमीन चमक रहा है कि जिस जमीन में ईमान वाला ईमान वाली मौजूद है। वो जमीन चमकने वाला है, वो जमीन चमक रहा है। आज उस फरवा कहमरी में हम लोग हाजिर हैं। दरबार फरवा कहमरी में, दरबार सलाम फरवा कहमरी में और दरबार जनाब मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और दरबार खदा में हम लोग हाजिर हैं। और हाजिर होकर क्या देख रहे हैं कि अल्लाह के दरबार जो है अल्लाह के नूर से चमक रहा है। अल्लाह के दरबार अल्लाह के नूर से चमक रहा है। और ईमान वालों का ईमान भी चमक रहा है कि जिस ईमान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है कि जिस ईमान में अल्लाह ईमान का कलमा लिख दिया है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये लोग जो लिख दिया है अल्लाह ने जिस दिलों उनके ईमान। अल्लाह ईमान का कलमा दिल में लिख देता है। अल्लाह ईमान का कलमा दिल में लिख देता है। कब लिखता है? जब वो इंसान मुसलमान जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में हाजिर मौजूद हो जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में बैठने से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होने से अल्लाह ईमान का कलमा लिख देता है। अल्लाह खुद ही लिख देता है ईमान का कलमा। और ये आखिरी जमाना में जो लोग औलिया इकराम के हुजरा शरीफ में हाजिर होते हैं, औलिया इकराम के हुजरा शरीफ में, दरबार शरीफ में, आपके सोहबत में जो लोग हाजिर होते हैं उन लोगों के दिल में भी अल्लाह ईमान का कलमा लिख देता है। ईमान का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा दिल में अल्लाह खुद ही लिख देता है। और जब कलमा लिखा जाता है तो ईमान वाला हो जाता है, वो ईमान वाला हो जाता है। और साथ ईमान के हम लोगों को चाहिए कि नमाज पढ़ना, साथ ईमान के हम लोगों को चाहिए कि रोजा रखना, साथ ईमान के हम लोगों को चाहिए कि कुरान पढ़ना और कुरान सुनना। ईमान के साथ अगर हम लोग नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, सदका जारिया, वारना मुनासिबा, अल्लाह का तमाम इबादत अगर हम लोग करें तो ईमान के साथ तो उस बंदों को अल्लाह बहुत पसंद करेगा। उस बंदों को अल्लाह ने बहुत पसंद करेगा और उस बंदा से अल्लाह राजी भी हो जाएगा। अल्लाह राजी भी हो जाएगा और अल्लाह खुशी भी हो जाएगा। बंदा से अल्लाह राजी होगा, बंदा से अल्लाह राजी हो जाएगा और अल्लाह बंदा से राजी हो जाएगा।
अनहु व रज़ुअहु। राजी है अल्लाह बंदा से और राजी है बंदा अल्लाह से। अल्लाह बंदा से राजी है और बंदा अल्लाह से राजी है। बंदा अल्लाह से राजी है, अल्लाह बंदा से राजी। ये किस जगह किस मुकाम की बात है? बंदा अल्लाह से राजी हो जाना और अल्लाह बंदा से राजी हो जाना, बंदा अल्लाह से राजी हो जाना, ये किस मंजिल का बात है? ये पीरी मुरीदी मंजिल का बात है। मुरीद अगर मुर्शिद से मुलाकात करे, मुरीद अगर मुर्शिद से मुलाकात करे और तो अल्लाह पाक उस मुरीद से राजी हो जाने वाला। और उम्मत अगर मोहम्मद से मुलाकात करे, उम्मत अगर मोहम्मद से मुलाकात करे तो अल्लाह उस उम्मत से राजी हो जाने वाला। और बंदा अगर अल्लाह से मुलाकात करे, बंदा अगर अल्लाह से मुलाकात करे तो वो बंदा से अल्लाह राजी हो जाने वाला। अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह हम कुल्ला कोने लोग का नहीं मान लाया, वलाकिन कुलू असलमना, वलाकिन मुसलमान हो तुम, वलाकिन कुलू असलमना, वलाकिन कहो मुसलमान हो तुम, वलमा यदखुल ईमान और भी नहीं दाखिल हुआ इस दिल तुम्हारा ईमान कि कुलूबकुम भी दिल तुम्हारे। मुसलमान होने ही से जो ईमान वाला है ये कोई मतलब नहीं है। मुसलमान होने ही से एक मुसलमान है मगर वो उसके अंदर ईमान नहीं है। मुसलमान होने ही से जो ईमान वाला है ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ईमान वाला होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कलमा पढ़ना है। मुसलमान होने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कलमा पढ़ना होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये कलमा अगर हम लोग दिल में रहे, दिल से अगर हम लोग ये कलमा पढ़े, दिल और जान से अगर हम लोग ये कलमा पढ़े तो बेशक हम लोग कामिल मुसलमान, ईमान वाला मुसलमान हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना शरीफ में बहुत सा लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरेब देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरा शरीफ में हाजिर होता था और कहता था काल अतिल आला व आमन्ना, कहा अल्लाह कहा कुरान में काल अतिल आला व आमन्ना, कहा और ईमान लाए हैं। कुछ लोग ऐसा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरा शरीफ में हाजिर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था कि हम लोग ईमान लाए हैं, हम लोग ईमान लाए हैं और हम लोग के दिल में ईमान दाखिल हो गया है। तो साथ ही साथ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल किया, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये सब इंसान से आप होशियार हो जाइए। ये सब इंसान से आप होशियार हो जाइए, आप खबरदार हो जाइए। बहुत से इंसान आपके दरबार में आते हैं, बहुत से इंसान दिल व जान से आपको मानते हैं और आप पर ईमान लाए हैं और आपके नाम पर कलमा भी पड़े हैं। और बहुत से इंसान ऐसा है कि आपको धोखा में आप फरेब में फेंक देने वाला है, वो दिल से कलमा नहीं पढ़ा है बल्कि आपके नजदीक, आपके सामने आकर के आपको सुनाने के लिए कहता है कि हम लोग ईमान लाए हैं, मगर हकीकत में वो ईमान नहीं लाए, उसके दिल में ईमान का कलमा नहीं लिखा गया है। और वो इंसान, अल्लाह कहा कि वो इंसान जाहिल है, गवार है। कहा गवारों ने ईमान लाए हैं, गवार बने जाहिल, गवार बने मूर्ख हो। कहा गवारों ने ईमान लाए हम, उल्लम कहा कि नहीं ईमान लाए थे। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा दिया, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए जो लोग कह रहा है कि हम लोग ईमान लाए हैं वो ईमान में झूठा है, उसके दिल में ईमान का कलमा नहीं लिखा गया। ऐ मोहम्मद आप साथ ही साथ कह दीजिए नहीं ईमान लाए तुम, वलाकिन तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो मगर तुम्हारे दिल में ईमान का कलमा दाखिल नहीं हुआ है।
वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, और अभी नहीं दाखिल हुआ ईमान बीच दिलों तुम्हारे दिल में भी ईमान दाखिल नहीं हुआ। जब दिल में ईमान दाखिल हो जाएगा, और रब्बुल आलमीन जब दिल में ईमान का कलमा लिख देगा, तब ही तुम लोग ईमान में कामिल हो जाओगे और कामिल मुसलमान हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ नाम के पहले मोहम्मद लिख देने से, नाम के पहले मोहम्मद लिख देने ही से वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए मुसलमान का काम करना पड़ेगा। मुसलमान होने के लिए कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसा हुक्म है अल्लाह की तरफ से, वो हुक्म को मानने होगा। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा काम, अल्लाह के जो हुक्म है कुरान शरीफ पर ईमान लाना है। कुरान शरीफ पर ईमान लाने पड़ेगा, और कुरान शरीफ पर ईमान लाने पड़ेगा, और अल्लाह का जो जितना हुक्म है, अल्लाह के तमाम हुक्म को मानने का कोशिश करना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कुरान के हुक्म किए हैं, वो हुक्म को हम लोगों को मान लेना पड़ेगा। और ये आखिरी जमाना में अभी अल्लाह के वली लोग हाजिर मौजूद हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त भी हाजिर मौजूद है। अल्लाह के वली नायब रसूल जो कुरान से हुक्म करेंगे, वो हुक्म को हम लोग को मान लेना है। तो मान लेने से क्या होगा कि हम लोग सच्चा और हक मुसलमान और ईमान वाला मुसलमान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसी अल्लाह का अल्लाह के बंदा होने के लिए अल्लाह के बंदगी हम लोगों को करना चाहिए। अल्लाह का बंदगी करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। जैसे अल्लाह कुरान में कहा कि नमाज की कायम करो। अल्लाह कुरान में कहा फसल से रब के कवाहर, फसल में बस नमाज पढ़ रब के वास्ते रब अपने के वनहर और कुर्बानी कर। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, रमजान शरीफ के महीने में रोजा रखते हैं, हज को जाते हैं। इन्ना सफा मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वतमर फला जुनाहा अलैहि अय्यतवाफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाहा साबिरुन अलीम। हम लोग हज को भी जाते हैं, जिसको अल्लाह हाजिर करता है हज के मैदान में, काबा शरीफ के मैदान में। वो लोग हज के मैदान में हाजिर होकर काबा शरीफ का तवाफ भी कर लेता है। तो तमाम हुक्म को अल्लाह का तमाम हुक्म को मानना है। ये सब अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, सदका, सदका जारिया, वादा बना सकना, ये सब जैसे अल्लाह का हुक्म है, इसी तरह अल्लाह के और भी बहुत हुक्म है। तमाम हुक्म में एक हुक्म ये भी है, अल्लाह कहा, ये भी एक बड़ा हुक्म है कि अल्लाह कहा कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरीद हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरीद हो जाओ, बैत हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो जाना ही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो जाना ही, अर्श अज़ीम पे अल्लाह ही से बैत हो जाना है, अल्लाह ही से मुरीद हो जाना है, अल्लाह से मुरीद हो जाना है। इसलिए दूसरे को
नमाज रोजा हज ज़कात कुर्बानी सदका सदका जारिया ये सब अल्लाह का हुक्म है। ये अल्लाह की इबादत है और अल्लाह का हुक्म है। तो हम लोग जितना कोशिश हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके अल्लाह की इबादत करने के लिए। इसी तरह अल्लाह कहा कुरान शरीफ में, किसी और जगह का बात नहीं है, किसी और दीन का बात नहीं है, किसी दुनिया की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, बल्कि ये कुरान की बातें हैं। अल्लाह कुरान में कहा इन्नल लजीना युबाइऊनका, ताकि जो लोग जो बैत करते हैं तुझसे मोहम्मद, ये अल्लाह कहा, ये अल्लाह ही कहा कि मोहम्मद जो आपसे बैत होते हैं, जो आपसे मुरीद होते हैं, इन्नमा युबाइऊनल्लाह, सवाए उसके नहीं के बैत होते हैं अल्लाह से। इन्नमा युबाइऊनल्लाह, सवाए उसके नहीं के बैत होते हैं अल्लाह से। तो अल्लाह ही कहा ऐ मोहम्मद जो आपसे मुरीद होते हैं, आपसे बैत होते हैं, आपसे नहीं होते हैं, आपसे मुरीद नहीं होता है, आपसे बैत नहीं होते हैं, बल्कि अल्लाह कहा कि हम ही से मुरीद होते हैं। यदुल्लाह है, हाथ है अल्लाह का, यदुल्लाह है, हाथ अल्लाह का, हाथ आयदीहिम, ऊपर हाथ मोहम्मद का है। अल्लाह अपने हाथ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर रख दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ है। इसलिए मुरीद होने से क्या है, मुरीद होने से क्या है कि हम लोग अल्लाह के हाथ तक पहुंच जाएंगे। मुरीद होने से हम लोग अल्लाह के हाथ तक पहुंच जाएंगे। यानी मुरीद होने से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हम लोग अपने हाथ को रखेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग मुरीद होंगे। ये सजद के मंजिल में अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाके तमाम लोगों को कुरान सुनाइए, आप कुरान से हिदायत कीजिए और तमाम लोगों को आप मुरीद कीजिए। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाना ही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह का हाथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मुरीद हो जाने ही से हम लोग अर्श अज़ीम में अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। यदुल्लाह है, हाथ है अल्लाह का, यदुल्लाह है, हाथ है अल्लाह का, फौका अयदीहिम, ऊपर हाथ मोहम्मद का। हज में जाइए, अल्लाह की इबादत है। ज़कात दीजिए, अल्लाह की इबादत है। कुर्बानी कीजिए, अल्लाह की इबादत है। और मुरीद होना वो इबादत है, मुरीद हो जाना वो इबादत है कि अल्लाह जो मुरीद होते हैं अल्लाह उनसे राजी और खुशी हो जाते हैं। उसको दलील कुरान है, लक़द रज़ियल्लाहु, अलबत्ता तहक़ीक़ राजी हुआ अल्लाह। और बहुत गौर से सुनिए और इस बात को फिक्र कीजिए, और बहुत गौर से सुनिए और इस बात पर अमल कीजिए और फिक्र कीजिए। अल्लाह कहा लक़द रज़ियल्लाहु, अलबत्ता तहक़ीक़ राजी हुआ अल्लाह, अनिल मोमिनीना, उस मोमिन से, उस मुसलमान से, युबाइऊनका, जो बैत होते हैं तुझसे। ऐ मोहम्मद, ताहत शजरते, ताहत शजरते, नीचे हुजरा शरीफ के, नीचे शजर के जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ में हाजिर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होते हैं, मुरीद होते हैं, उनसे अल्लाह राजी और खुशी है। सुभान अल्लाह कीजिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी और खुशी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरीद हो जाने ही से अल्लाह उस बंदा से राजी और खुशी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह खुशी तो दुख किस बात की? जब अल्लाह खुशी है बंदा से तो वो बंदा के वास्ते तमाम जन्नत का बगान खुला हुआ। अगर एक बंदा से अल्लाह खुशी हो जाए, अगर बंदा से अल्लाह खुशी हो जाए, वो बंदा को क्या चाहिए? वो बंदा के वास्ते अल्लाह जन्नत के बगान को खोल दिया है। और यहाँ तक कि उसका दिल भी खोल दिया
शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह। अल्लाह कहा जो इस्लाम के वास्ते आगे आया है, जो इस्लाम के वास्ते आगे बढ़ा है, अल्लाह का अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम इस्लाम के वास्ते जो लोग आगे बढ़ा है, आगे चला है, अल्लाह कहा सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह। हम उसका दिल को खोल दिया है, सीना को सरा कर दिया है और सीना में हम अपना नूर को, अपना तजल्ला को जाहिर कर दिया है। इस्लाम के वास्ते आगे बढ़िए, दीन के वास्ते आगे बढ़िए, सिरात मुस्तकीम के जो राह है उस राह में चलिए। चलते चलते हम लोग अल्लाह के दरबार तक पहुंच जाएंगे और इसी नहीं अल्लाह हम लोगों के दिल में अपना नूर जाहिर कर देगा। अल्लाह हम लोगों के दिल में अपना नूर जाहिर कर देगा। जब हम लोग सिरात मुस्तकीम के राह में चलेंगे तो पहले कहां पहुंचेंगे? पहले अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचेंगे और अल्लाह के वली के दरबार से चलते चलते कहां पहुंचेंगे? जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से चलते चलते हम लोग कहां पहुंचेंगे? अर्श अज़ीम में रब्बुल आलमीन के दरबार में। कहिए सुभान अल्लाह। मकाम सिद्दीक़ फी मकाम सिद्दीक़ बीज मकाम सिद्दीक़ के आले मोहम्मद बीज मकाम सिद्दीक़ के इनका मलिक इमाम मुक़तदिर इनका मलिक इमाम मुक़तदिर नजदीक बादशाह कुदरत वाले के आले मोहम्मद नजदीक बादशाह कुदरत वाले के। क्या इस दुनिया में हम लोग अल्लाह बादशाह के नजदीक नहीं पहुंच सकते? कहिए ना, जब क्या कहते हैं इस दुनिया की हयात में क्या हम लोग अल्लाह बादशाह के नजदीक? अल्लाह बादशाह है दुनिया में, दुनिया का बादशाह बहुत है। ये आसमान जमीन को अल्लाह बनाया और ये आसमान जमीन के दरमियान बहुत बादशाह है। वो दुनिया के बादशाह है, वो बादशाह दुनिया के जो बादशाह है और जो दुनिया के जो बादशाहियत है वो गिर जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। मगर अल्लाह बादशाह कायम है और कायम रहेगा। 7 तबक आसमान और 7 तबक जमीन ये अल्लाह ही का बात, अल्लाह का बादशाहियत है, अल्लाह का बादशाहियत है। तो अल्लाह कहा कुरान शरीफ में उर्दू से हुक्म के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ हम लोग मुरीद हो जाए। ये भूलने वाला बात नहीं है, ये भूल जाने वाला बात नहीं है। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के कुरान की बात है। नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। क्या हम लोग नमाज छोड़ देते हैं? ये नहीं, नमाज अल्लाह पढ़ने के लिए कहा है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह कहा पढ़ो, नमाज कायम करो। क्या हम लोग नमाज को छोड़ दिए हैं? हम लोग नमाज के साथ हैं, नमाज के साथ है और हम लोग नमाज के वक्त में नमाज को कायम भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह, जिस अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, वही अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो हमारे हबीब के नजदीक, हमारे मोहम्मद के नजदीक तुम लोग मुरीद हो जाओ। क्या इस बात को हम लोग नहीं मानेंगे? बेशक मानना है। जो अल्लाह कहा नमाज पढ़ो, जो अल्लाह कहा कुर्बानी करो, जो अल्लाह कहा हज में जाओ, जो अल्लाह कहा ज़कात दो, जो अल्लाह कहा फितरा दो, वही अल्लाह कहा कि तुम लोग मुरीद हो जाओ। मगर मुरीद होने से हम लोग पीछे भागते हैं, मुरीद होने से हम लोग पीछे भागते हैं। और हम लोगों को मुरीद होने का जो बात है, ये बात हम लोगों को हिदायत नहीं किया जाता है। हम लोगों को हिदायत नहीं किया जाता है, हम लोगों को हिदायत नहीं किया जाता है। इस बात को मुरीद होना
अल्लाह जो कुरान में कहा कि मुरीद हो जाओ, ये बात को हम लोग चांप के रखते थे, ये बात को हम लोग खुलासा नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोग क्या जानेगा, क्या समझेगा। हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह का जो पैगाम है, कुरान क्या है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का हुक्म है। तो कुरान में जो बातें हैं, कुरान में जो अल्लाह फरमाया है, ये बात को दुनिया के लोग तक पहुंचा देना, इसी के नाम है दीन इस्लाम को फैलाना। के बाद कुरान शरीफ का जो बात है, अल्लाह का जो कलाम है, इसको फैलाना माने दीन को फैलाना। मगर हम लोग मुरीद होना ये बहुत बड़ा बात है। अल्लाह कुरान का कहा, जिसको हम लोग छुपा के रखते हैं, नहीं बयान करते, तो हम लोग तमाम इंसान है। अगर बयान नहीं किया जाएगा, अगर नहीं समझाया जाएगा, तो हम लोग क्या समझेंगे। हम लोग को जाहिल, हम लोग मैदान है। तो उलमाए दीन को चाहिए कि मुरीद होना जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान में अल्लाह कहा है, इसको ना छुपाए, इसको ना दबाए, इसको खुलासा करे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा दावत दे कि तुम लोग नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी के साथ तुम लोग जो है मुरीद भी हो जाओ, बैत हो जाओ। इसलिए कि बैत होने से अल्लाह राजी होता है, मुरीद होने से अल्लाह राजी होता है। और अल्लाह के राजी करना ये बंदा का लिए फर्ज है कि अल्लाह के राजी हम लोग नहीं करेंगे। कहिए ना जी, अल्लाह के राजी करना है या ना करना है? बोलिए जी, अल्लाह को हम लोग राजी करेंगे ना राजी नहीं करेंगे? अगर राजी करना है तो मुरीद हो जाइए, अगर राजी खुदा को करना है तो मुरीद हो जाइए। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहा, ये हमारा बात नहीं है, ये हमारा अपना हुजूर मुंशी साहब फरवा का हमारी का बात नहीं है, ये हमारा दादा हुजूर मुंशी सूफी फरवा का हमारी रहमतुल्लाह अलैह का बात नहीं है, ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बात नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात नहीं है, ये कोई नबी रसूल का बात नहीं है, बल्कि ये अर्श अजीम में आखिर अल्लाह ही का बात है। अल्लाह का कलाम है। अगर हम लोग अल्लाह के मानते हैं, अल्लाह के कुरान को अगर मानते हैं, तो ये देरी ना करे, जल्द से जल्द मुरीद हो जाए, बैत हो जाए और अल्लाह को राजी करे, अल्लाह की खुशी करे। अल्लाह के राजी और खुशी के साथ हम लोग अल्लाह के तमाम इबादत करें, तो अल्लाह हम लोगों के साथ ही रहेगा। अल्लाह हर शय के साथ है, ये आम है। अल्लाह हर शय के साथ है, ये आम है। मगर अल्लाह है अल्लाह वाला के साथ, अल्लाह है अल्लाह वाला के साथ। अल्लाह वाला कौन लोग है? जो लोग राह तरीकत के पीर मुर्शिद के नजदीक बैत हुए हैं, ये सुभान अल्लाह। जो लोग मदीना शरीफ के जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए हैं, अल्लाह उन लोगों के साथ है। और जो लोग अर्श अजीम में अल्लाह से मुरीद हुए हैं, बैत हुए हैं, उन लोगों के साथ अल्लाह हाजिर है। ये सुभान अल्लाह। हमारे खुदा, हमारे इलाही परवरदिगार आलम क्या कहा? वहुवा माकुम, अल्लाह कहा कि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, और वो साथ तुम्हारे है जहां हो तुम। सुनिए, बात तो ये है, अल्लाह कहा है कि हम तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग जहां हो। हम तुम लोगों के साथ हैं, तुम लोग जहां हो। इसके तफसील कीजिए, इसके तफसील बयान कीजिए। ये आयत का तफसील शरीयत के मदरसा में नहीं है, ये आयत का तफसील अल्लाह के वली के नजदीक है, जिसको अल्लाह इल्म लदुनी दिया है। वह हुआ माकूम है ना माकूम तो, और वो साथ तुम्हारे है जहां हो तुम। सुनिए, हमारा बात को समझ रहे नहीं, हमारे बात को समझ रहे नहीं, बोली नहीं, समझते है कि नहीं? हर रोज हर सारा बरस आप लोगों को बांग्ला में बयान सुनाते हैं, मगर आज उर्दू में बयान सुनाने का इरादा किए हैं, और अल्लाह की तरफ से ये इरादा है कि हमारा तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से।
और हम जो कुरान का बयान कर रहे हैं ये हम अपने तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से बयान हो रहा है। जब तक अल्लाह बयान करेगा, बयान कराएगा, कुरान का बयान जारी रहेगा। जैसे अल्लाह दरिया को जारी किया, उसी तरह कुरान भी एक दरिया है। कुरान भी एक दरिया है। दुनिया का जो दरिया है वो दरिया जो है सूख जाने वाला है, पानी सूख जाने वाला है, मगर कुरान दरिया सूखने वाला नहीं है। कुरान जो दरिया अल्लाह जारी किया है, ये कुरान दरिया का बयान यानी कुरान दरिया का जो पानी है ये पानी सूखने वाला नहीं है, ये पानी खत्म होने वाला नहीं है। कुरान बयान सुनते सुनते हम लोग खत्म हो जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। हम लोगों का बाप दादा खत्म हो गया है, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो लोग दुनिया में आएंगे वो लोग भी कुरान सुनेंगे। सुनते सुनते वक्त आएगा वो लोग भी खत्म होकर चला जाएगा, दुनिया से मट्टी में चला जाएगा, मट्टी मंजिल हो जाएगा, मगर कुरान का बयान खत्म होने वाला नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। सुनिए, वह कुंतुम, और वो साथ तुम्हारे हैं जहां हो तुम। इस आयत में अल्लाह कहा है कि हम तुम लोग जहां हो हम तुम लोगों के साथ हैं। तुम लोग जहां हो हम तुम लोगों के साथ हैं। अगर कोई इंसान कोई नबात जगह में हो तो क्या वहां अल्लाह साथ रहेगा? बोलिए नहीं। अगर कोई इंसान नबात जगह में हो तो वहां क्या अल्लाह उस इंसान के साथ रहेगा? कोई इंसान अगर शराब खाना में हो, कोई इंसान अगर जहां पर शराब पिया जाता है, दारू पिया जाता है, जहां पर निशा किया जाता है, जहां पर चुल्लू पिया जाता है, तरह तरह का निशा है, अगर वहां इंसान बैठ के हो तो क्या अल्लाह वहां उस इंसान के साथ रहेगा? अल्लाह वहां नहीं रहेगा। अल्लाह नापाक जगह में नहीं रहता है। अगर इंसान अल्लाह के घर में हो, अगर इंसान काबा में है, अगर इंसान मदीना शरीफ में है, अगर इंसान हुजरा शरीफ में है, अगर इंसान मस्जिद में है, अगर इंसान ईदगाह के मैदान में है, अगर इंसान कुरानी मजलिस में है, अगर इंसान दुआ की मजलिस में है, अगर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ में है, अगर इंसान अपने घर में पाक जगह में है, तो बेशक अल्लाह उस इंसान के साथ है। अल्लाह उस इंसान के साथ है। इसीलिए अल्लाह कहा और वो साथ तुम्हारे हैं जहां हो तुम। ये आम बात है कि अल्लाह हर शय के साथ है, अल्लाह हर शय के साथ है, ये आम बात है, मगर अल्लाह है हकीकत में अल्लाह वाला के साथ। अल्लाह वाला जो है कभी नापाक जगह में नहीं रहता है। अल्लाह वाला कभी नापाक जगह में नहीं रहता है। अल्लाह वाला नापाक जगह में नहीं रहता। अल्लाह वाला हमेशा पाक ही जगह में रहता है। अल्लाह वाला कहाँ रहता है? अल्लाह वाला रहता है कहाँ पर? पाक जगह में, हुजरा शरीफ में, मेहराब में, मस्जिद में, काबा शरीफ में, मदीना शरीफ में, इस सब जगह में, पाक जगह में अल्लाह वाला रहता है। अल्लाह वाला रहता है। अगर कोई अल्लाह का खबर जानना चाहे, तो वो खबर कहां से मिलेगा? बोलिए जी। अगर कोई अल्लाह का खबर जानना चाहे कि अल्लाह कहां है, अल्लाह किस जगह है, अल्लाह का हकीकत क्या है, तो वो खबर कहां से मिलेगा? वो खबर मिलेगा अल्लाह वाला से। अल्लाह वाला से खबर मिलेगा, अल्लाह वाला के नजदीक खबर मिलेगा। सुनिए जी, आप बाजार में गए हैं, बाजार में जो है सब्जी वाला है, गोश्त वाला है, मछली वाला है तो आपको अगर आपको सब्जी की जरूरत है, आप सब्जी खरीदिएगा, आपको सब्जी चाहिए तो आप किसके नजदीक जाइएगा? गोश्त वाला के पास, मछली वाले के पास या सब्जी वाला के पास?
सब्जी वाला के पास आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको सब्जी मिलेगा। और गोश्त वाले का नजदीक जाके बोलिएगा आपको सब्जी दो, देगा नहीं देगा। गोश्त लेने के लिए गोश्त वाले के पास जाना पड़ेगा, मछली खरीदने के लिए मछली वाले के नजदीक जाना पड़ेगा, और सब्जी लेने के लिए सब्जी वाला के नजदीक जाना पड़ेगा। तो अल्लाह के खबर जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा अल्लाह वाला के पास। सुभान अल्लाह। जब तक अल्लाह वाला के नजदीक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तो अल्लाह की खबर नहीं जाएगी। अल्लाह का खबर जलाने के लिए अल्लाह वाला को भेजा है। और वो अल्लाह वाला कौन है? ये आखिरी जमाने में हजरत मौलाना सैयद शाह सलाम फरवाहा का अमली साहब है। सुभान अल्लाह। तो आपका तरीका कादरिया पे खानदान कादरिया के जरिए आपका के मुरीद होते जान मुर्शिद सलाम फरवाहा का अमली साहब के কাছে আপনারা মুরিদ হয়ে যান। মিম্বার শরীফের কাছে চলে আসুন, নিজ নিজ নাম লিখিয়ে वजीफा दौलत हासिल करो। आप हजरत से गुजारिश है जो लोग तरीका कादरिया में खानदान कादरिया में मुरीद होना चाहते हैं, मुर्शिद सलाम फरवाहा का अमली साहब के नजदीक आप लोग मिंबर शरीफ के नजदीक चले आइए और अपना अपना नाम लिखा कर वजीफा और दौलत हासिल कीजिए। दूसरी को आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व हुवा माअकुम अय्नामा कुंतुम व हुवा माअकुम अय्नामा कुंतुम और वो साथ तुम्हारे है जहाँ हो तुम और वो साथ तुम्हारे है जहाँ हो तुम। अल्लाह हम लोगों के साथ है। जब हम लोग राह तरीक़त के पीर मुर्शिद के दरबार में हाजिर है और कुरान सुन रहे हैं तो बहुत पाक जगह में, मुकद्दस जगह में, पाक जगह में हम लोग हाजिर हैं। तो बेशक अल्लाह हम लोगों के साथ हाजिर है। कहीं सुबह अल्लाह हम लोगों के साथ बार-बार कह रहे हैं आप लोग मुरीद हो जाइएगा, आप लोग बैत हो जाइएगा, आप लोग बेमुरीद नहीं रहिएगा। इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। ये मुरीद होने का खबर किसी और मिंबर से बाहर नहीं होता है। ये मुरीद होना, ये जो मुरीद होने का जो खबर है और मुरीद होने का जो ऐलान है, ये खबर और ये ऐलान एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से जारी था। और आखिरी जमाना में ये मुरीद होने का खबर और मुरीद होने का ऐलान ये सलाम फरवा का अमली साहब के मिंबर से जारी है। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत से लोग सुनिए जी, बहुत सारे नई मुरीदें हैं, नया मुरीद हुआ है, खबर जानते नहीं है। सुनिए, मुर्शिद सलाम फरवाहा का अमली साहब ये जो है अभी हम लोगों के सामने हाजिर मौजूद है। मुर्शिद सलाम फरवाहा का अमली साहब हम लोगों के नजदीक हाजिर व मौजूद है। बहुत से लोग बहुत तरह से देखता है, बहुत से लोग बहुत तरह से चिंता है। कोई सोचता है और कोई समझता है। जिसका अकल और जिसका समझ जैसा है, जिसका अकल और जिसका समझ जैसा है वो उसी तरह समझता है। बहुत से लोग जानता है और समझता है कि सलाम फरवाहा का अमली साहब वो हमारा ऐसा आम इंसान है, हम लोगों का तरह आम इंसान है। मगर सुनिए, सलाम फरवाहा का अमली साहब हम लोगों की तरह आम इंसान, आम लोग नहीं है, आम इंसान नहीं है। मुर्शिद सलाम फरवाहा का अमली साहब इस जमाने में अल्लाह उनको वली बना के भेजा। अल्लाह सलाम फरवाहा का अमली साहब को वलायत दिया है, वली बना के भेजा है हम लोग को हिदायत करने के लिए। और सलाम फरवाहा का अमली साहब आप जो है वली है, आप जो है मुर्शिद है और आपका बाप भी वली है, मुर्शिद है। सलाम फरवाहा का अमली साहब अल्लाह के वली है और उनका जो बाप है मुर्शिद सलीम फरवाहा का अमली रहमतुल्लाह अलैह, आप भी अल्लाह के वली है। कहिए सुभान अल्लाह। आप वली है और वली का औलाद भी है। कहिए
कि सुभान अल्लाह आसुफ फरवा का रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने कुरान का बलिष्ठ बना दिया। सुभान अल्लाह। और इस जमाना में अल्लाह मुर्शिद साहब फरवा कादरी साहब को कुरान का बलिष्ठ बना के भेजा है। इसलिए कि मुर्शिद साहब फरवा कादरी साहब आप जो है अल्लाह का नूर ही से आया है। ये अल्लाह का नूर से आया है। फरवा कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप भी अल्लाह के नूर से आया है। आज दुनिया में जितना इंसान है सब इंसान ही अल्लाह के नूर से बना है। बगैर अल्लाह के नूर से कोई इंसान नहीं है। तमाम इंसान को अल्लाह ने अपना नूर ही से बनाया है। ये मरहबा। इसलिए सुनिए कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया मदो से पढ़िए যদি मूसा আলাইহিসসালাম যদি আগুন থেকে হেদায়েত পেতে পারে, मूसा আলাইহিসসালাম যদি আগুন থেকে হেদায়েত পেতে পারে তো আমরা কি আমাদের পীর মুর্শিদ থেকে হেদায়েত পেতে পারি? বলুন না। बेशक बेशक मूसा अलैहिस्सलाम अगर आग से हिदायत पा सकते हैं तो हम लोग क्या अपने मुर्शिद से हिदायत नहीं पा सकते? सुभान अल्लाह। हम लोग क्या अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हिदायत नहीं पा सकते? जरूर पा सकते। बोलिए जी क्या कहते हैं आप लोग? जरूर पा सकते हैं। बेशक पा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आग से हिदायत पाए, मूसा अलैहिस्सलाम आग से हिदायत पाए और हम लोगों को अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत करवाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को हिदायत किए और आखिरी जमाने में हम लोग वारिसुल नबी से हिदायत पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वहला अताका हदीसु मूसा वहला अताका हदीसु मूसा और क्या आई है तेरे पास हदीस मूसा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या आई है तेरे पास हदीस मूसा की। इजरा नारा निस्वत कर देती उसने इजरा नारा निस्वत कर देती। मैंने आप मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। सुनिए बात तो ये है हमारे दादा हुजूर सूफी फरवा कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप हर कुर्स में मूसा अलैहिस्सलाम का बयान करते थे। सुभान अल्लाह। सूफी फरवा कादरी रहमतुल्लाह अलैह अतिया शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम का बयान आप इसी करते थे कुर्स में। मूसा अलैहिस्सलाम का देश, मूसा अलैहिस्सलाम का घर कहाँ है? मिस्र में है। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है फिरौन का जो बावर्ची है वो खाना पकाने में जो है थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया था। खाना जो पकाया था मैंने फिरौन का जो बावर्ची इसमें कोई लज्जत पैदा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम का बचपना तो फिरौन के घर में कटा। फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा हुए तो फिरौन का बावर्ची खाना पकाने में 19-20 किया तो मूसा अलैहिस्सलाम एक मुक्का मारा, एक घुसा मारा किसको? फिरौन के बावर्ची को। और साथ ही साथ रहे फिरौन का जो बावर्ची है उसका जिंदगी तमाम हो गया। बाबा का बिहार से आए हैं सभी लोग। सुनिए ये कुरान की बातें हैं। सुनिए हम आप लोगों को क्या सुनाएंगे? हम आप लोगों को अल्लाह की तरफ से कुरान ही सुना रहे हैं। ये सुना तो जोर से सुना नहीं होगा। मूसा पस मुक्का मारा उसको मूसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस मुक्का मारा उसको मूसा ने फकदा रहे पस तमामों की ऊपर जिंदगी उसकी है मोहम्मद पस तमामों की ऊपर जिंदगी उसकी। एक घुसा में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के बावर्ची
बावर्ची जो था उसके जिंदगी को तबाह कर दिया, यानी एक गुस्सा में बावर्ची खत्म हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ के, देश छोड़ के चले गए। कहाँ थे? अपने ससुराल में थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर आप ही नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। शोएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम है। तो शोएब अलैहिस्सलाम का जो बेटी थी, शोएब अलैहिस्सलाम का जो बेटी थी, उनका नाम था सफूरा। उनसे मूसा अलैहिस्सलाम का शादी हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम 10 बरस ससुराल में रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम 10 बरस ससुराल में रह गए और जब 10 बरस पूरा हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अब हम अपने देश में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे और अपने माँ बाप से, भाई बहन से मुलाकात करेंगे। ये सोचकर मूसा अलैहिस्सलाम जो है अब जो है ससुराल से मिस्र की तरफ, अपने देश की तरफ रवाना हुए और उनका ससुर शोएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर शोएब अलैहिस्सलाम आप भी कह दिए कि अपने दामाद को यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम्हारा जो बीवी है और अपना बीवी को और आपका जो मैंने बकरी है, भेड़ा है, ये सब दे करके और आपका जो सामान है ये सब दे करके आप जो है जहाँ खुशी जा सकते हैं, जहाँ खुशी आप जा सकते हैं। इसमें हमारा बोलने का कोई बात नहीं है, हमारा कोई सवाल जवाब नहीं है। आप जहाँ खुशी, जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बीवी को और अपने सामान जो था, सामान को लेकर के और मैंने बकरी को, भेड़ा को लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम जो है निकल गए मिस्र जाने के लिए, अपने देश जाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम मदाइन छोड़ दिए। जब मदाइन से जब कुछ दूर आगे गए, कुछ दूर जब पहुंचे तो शाम हो गया यानी मगरिब के वक्त हो गया। अंधेरी छा गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम जहां पर पहुंचे, जहां पर अंधेरी छा गई तो वो कौन जगह था? वो तोआ मैदान के नजदीक था। वो मैदान तोआ के नजदीक था। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि रात में यहीं पर आना है। एक ताबू खटाए और खड़ा करके आप सोचे कि यहीं पर रात में हम लोग रहेंगे। अभी जब सुबह होगा तो फिर मिस्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो मैदान तोआ के नजदीक था। तो और उसी वक्त खुदा की क्या हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवी सफूरा, उनका जो है पेट में बच्चा था और बच्चा होने में जो दर्द है वो दर्द जो है लगा उठने और अल्लाह के हुक्म से मगरिब के बाद ही उनका जो है बच्चा हुआ। अल्लाह के हुक्म से बच्चा जब हुआ और आस्ते आस्ते धीरे धीरे आसमान में जो है बादल छा गया। आसमान में बादल छा गया, आसमान बादल से भर गया और छा और पानी शुरू हो गया। पानी जब शुरू होने लगा ठंडा लगने लगा। जब ठंडा लगने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा आप जो ठंडा में जो है कांप रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम को भी ठंडा लग रहा था। ठंडा के टाइम में ये तो जाहिर बात है, ये तो जाहिर बात है। ठंडा तो लोग नहीं करेगा ठंडा के वक्त में, और खुदा के लिए एक हिकमत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी जब लगी ठंडा में कांपने, तो मूसा अलैहिस्सलाम और वहाँ आसपास में करीब में कोई घर बाड़ी नहीं था, कोई बस्ती नहीं था, कोई घर बाड़ी नहीं था कि वहां से आग ला करके आग ला करके आग तापने से जो है ठंडा दूर हो जाएगा। जब ज्यादा ठंडा गिरता है तो हम लोग आग जलाते हैं, बोलिए जी, आग जलाते हैं, आग तापते हैं। तो आसपास का कोई घर नहीं है, मैदान फाका है, एकदम जंगल है और सामने खुला मैदान है
आग का कोई खबर नहीं है, आग का कोई पर गुंजाइश नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दूर में, मूसा अलैहिस्सलाम के जब नजर पड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम देखा कि दूर में जो है आग जल रहा है, बहुत दूर में आग जल रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बीवी को कहा कि तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ पर ठहर जाओ, आग तो मिल नहीं रहा है मगर बहुत दूर में देख रहे हैं कि आग जलाई जा रहा है, हम जाए वहां पर, वहां से हम आग भी ला सकते हैं या वहां से हम हिदायत भी पा सकते हैं, हिदायत भी पा सकते हैं। वहां आता का हदीस मूसा, और क्या आया तेरे पास हदीस मूसा की इजरा नारन, जिस वक्त के देखी उसने आग, जिस वक्त के देखी उसने आग। मूसा अलैहिस्सलाम जब आग देखा फकाला पस कहा ले आहलिही को वास्ते बीवी अपने के ठहर जाओ, फकाला पस कहा इजरा नारन, जिस वक्त के देखी उसने आग, फकाला पस कहा ले आहलिही को वास्ते बीवी अपने के ठहर जाओ। आगुन देखे मूसा अलैहिस्सलाम दूरे, आगुन देखे, आग देखकर अपने बीवी को कहा कि बीवी तू यहाँ ठहर जा, तू यहाँ पर ठहर जा, हम जा रहे हैं आग लाने के लिए। वो आग लाने से, वो आग काटने से ठंडी जो है दूर हो जाएगा, ठंडा दूर हो जाएगा। यार यही रसूल इन्नी आनस के नारन, ताकि के देखी मैंने आग, ताकि के देखी मैंने आग, लाली शायद तो आदमी को आवे तुम्हारे पास मिनहा उससे बेकबसिन और अजद वालनार, बेकबसिन और अजद वालनार होगा। हम वहां से आग के अंगारा, आग का टुकड़ा हम लाएंगे या वहां से हिदायत हम हिदायत भी पा सकते हैं, हिदायत भी पा सकते हैं। फलम्मा कहा नूदिया या मूसा, फलम्मा कहा नूदिया या मूसा, पस जब आया उसके पास पुकारा गया हे मूसा, पस जब आया मूसा के पास पुकारा गया हे मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के नजदीक पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के नजदीक पहुंचे तो पुकारा गया ऐ मूसा इन्नी अना रब्बका, ताकि कि मैं रब हूं तुम्हारा। मूसा अलैहिस्सलाम आग लाने के लिए तो मैदान में चढ़े, तो मैदान में चढ़े तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के पांव में जूता था, मूसा अलैहिस्सलाम के पांव में जूता था और मूसा अलैहिस्सलाम जूता पहन के तो मैदान में चढ़ गए आग लाने के लिए। तो अल्लाह ने कहा इन्नी अना रब्बुका, ताकि कि मैं रब हूं तुम्हारा। ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, पकड़ा ना ले, बस अपने दोनों जूतियां उतार डाल, पकड़ा ना ले। ऐ मूसा तू अपने दोनों जूतियां उतार डाल, तुम्हारा पांव में जो जूता है वो जूता को खोल दे, वो जूता खोल दे, इसलिए कि इन्ना कभी वादी मुकद्दस से दुआ, ताकि कि तू बीच मैदान ताक के है, इनाम उसका दुआ है। ऐ मूसा तू जिस मैदान में हाजिर है ये मैदान पाक मैदान है, ये मैदान अक़दस मैदान है, ये मैदान पाक मैदान है, इसमें जूता पहन कर मत उठ। ऐ मूसा तू अपने दोनों जूता को खोल दे, मैदान के बाहर खोल दे और खाली पाओ मैदान में आओ, आ जाओ और आ करके वहां से जो आग देखा है, ऐ मूसा आग के नजदीक चले जाओ, आग के नजदीक चले जाओ, हम अपने रहमत और करम फजल से तुमको हम जो हिदायत भी करेंगे और तुम वहां से आग भी पा जाओगे। सुभान अल्लाह। इन्ना कबील वादी मुकद्दस दुआ व अनख्तरत का, और मैंने पसंद किया तुझको। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा ऐ मूसा हम तुझको पसंद कर लिया, हम तुझको पसंद किया, बस समय पर सुन लेमा यूं है जो मुझको ही किया जाता है। आम इंसान के वास्ते वही नहीं है, अल्लाह सुनाएगा वो सुनेगा, वो भी माने डायरेक्ट नहीं सुन सकेगा, मगर अल्लाह के नबी के वास्ते अल्लाह डायरेक्ट जो है अल्लाह नबी को सुनाता है। कोई भी नबी हो अल्लाह सुनाता है, उसको कहा जाता है वही। बस समय पर सुन लेमा यूहा जो कुछ को ही किया जाता है। इन्ननी अल्लाह, ताकीक मैं ही हूँ अल्लाह, ताकीक मैं ही हूँ अल्लाह। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ये बात कहाँ हो रहा है? तो मैदान में, तो मैदान में ये बात हो रहा है। इन्ननी अल्लाह हो, इन्ननी अल्लाह हो, ताकीक मैं ही हूँ अल्लाह, ताकीक मैं ही हूँ अल्लाह। আমি খোদা আছি, আমি খোদা আছি। আল্লাহ বলছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, नहीं कोई माबूद मगर मैं। अल्लाह
अल्लाह ने कहा ऐ मूसा हमारे सवा और दूसरा कोई माबूद नहीं है। हमारे सवा दूसरा कोई माबूद नहीं है। वाक़ई सलाता और कायम कर नमाज को जिक्र हमारे जिक्र के वास्ते, सुभान अल्लाह, हमारे जिक्र के वास्ते नमाज को कायम कर, हमारे जिक्र के वास्ते नमाज को कायम कर। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहा कि ऐ मूसा फिरौन जो है घूस कर रहा है, सुभान अल्लाह, फिरौन वो जो है बोल रहा है कि हम खुदा है। फिरौन कहता है कि हम खुदा है, हमारे सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है, हम ही को मानो और हम ही को मानो और हमारी ही इबादत करो। फिरौन कहता है भाई मूसा तुमको जाना होगा फिरौन के नजदीक और जाकर उसको हैरान करना है फिरौन को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहे इलाही हमको डर लग रहा है, हमको डर मालूम हो रहा है, हमको खौफ हो रहा है, इसलिए कि हम तो एक फिरौन के बावर्ची को मार के हम मदायन चले गए थे, अपना देश छोड़ दिए थे। अगर हम अकेला जाएंगे फिरौन के नजदीक तो फिरौन हमारा जान भी मार सकता है, फिरौन हमारा जान भी मार सकता है, तो हम अकेला नहीं जाएंगे, हम अकेला नहीं जाएंगे। इलाही ऐ माबूद मौला आप हमको हमारे साथ हमारा एक भाई जो हारून है, मूसा अलैहिस्सलाम का भाई हारून अलैहिस्सलाम वो भी नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहे कि हमारे साथ हमारा एक भाई हारून हमारा भाई हारून को भी हमारे साथ है, हमारे साथ हमारा भाई को ले ले कि हम मूसा और हमारा भाई हारून हम लोग दोनों जाकर के फिरौन को हिदायत करेंगे, फिरौन को हिदायत करेंगे, फिरौन को हिदायत करेंगे। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा अल्लाह के इलाही तो हम तो हमारा भाई फिरौन हम और हमारा भाई हारून जाके मूसा जाके फिरौन को तो हिदायत करेंगे, मगर हमारा बीवी और बच्चा वहां पर है, हमारा बकरी है, हमारा खसी है, हमारा भेड़ा है, भेड़ी है, ये सब है, हमारा माल सामान है, ये सब कौन पढ़ा देगा, ये सब कौन देगा। अल्लाह का ऐ मूसा तुमको सोचना नहीं है, तुमको फिक्र नहीं करना है, सोचना नहीं है, तुम्हारा बीवी और बच्चा के वास्ते हम जन्नत से जो है हूर भेजेंगे, जन्नत से हूर भेजेंगे। वो हूर जो है बहुत हूर अल्लाह भेजा। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो बीवी है बच्चा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम के बीवी को और मूसा अलैहिस्सलाम के बच्चा को वो जन्नत के हूर जो है देखभाल कर रहा है। और अल्लाह जो है बहुत सा पाक को भेजा है, बकरी और खस्सी भेड़ा भेड़ को पहाड़ देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब खुद आए, जब मैदान से जब बीवी के नजदीक पहुंचे तो क्या देखे कि जन्नत के बहुत से हूर जो है उनका बीवी को और उनका बच्चा को जो है देखभाल कर रहा है। और बाप जो है खस्सी और बकरी को देखने को छोड़ेगा, वो तो खस्सी और बकरी को खाएगा, मगर खस्सी और बकरी या नहीं खा रहा, वो लोग बदल रहा है, बाप कहेंगे हम लोग खा लें, मगर खुदा का हुक्म है बाप खस्सी और बकरी को नहीं खा सकता। बाप को अल्लाह भेजा है बकरी और खस्सी को पहाड़ देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के माल, मूसा अलैहिस्सलाम का सामान, मूसा अलैहिस्सलाम के बीवी बच्चा दुरुस्त कर, इसलिए अल्लाह जन्नत से हूर भेजा और बाप को भेज दिया जाके वहां पर देखभाल करो। तो देखभाल अल्लाह का हुक्म बाप भी मानता है। अल्लाह का हुक्म जो है जन्नत के जो जानवर है ये लोग भी खुदा का हुक्म मानता है, अल्लाह का फरिश्ता ये लोग भी खुदा का हुक्म मानता है। मानने में एक मत है बंदे हैं कर्म किए गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल के बंदे हैं कर्म किए गए। हम लोग बंदा है अल्लाह का, हम लोग अल्लाह का बंदा है। सुनिए जी, फिरौन के नजदीक जब मूसा हारून पहुंचा, फिरौन का जो बिल्डिंग है, बड़ा खाना है, रात प्रसाद है फिरौन का, ताकि कोई दोस्त दुश्मन घर के अंदर घुस न जाए,
इसलिए फिरौन का घर के सामने खजूर का दरख्त था, खुरमा का दरख्त था, और उसी दरख्त में गोश में बड़ा बड़ा बाग को फिरौन बना कर रखा था ताकि कोई दोस्त दुश्मन फिरौन के घर में घुस ना जाए। मगर जब मूसा और हारून जब फिरौन के नजदीक फिरौन के घर तक पहुंचा तो बाग जो है रास्ता छोड़ दिया, बाग जो है रास्ता छोड़ दिया और माथा नीचा किया मूसा और हारून के नजदीक और रास्ता को छोड़ दिया ताकि मूसा और हारून साथ आसानी में फिरौन के घर तक पहुंच सके। फिरौन के घर में जब पहुंचा, फिरौन के घर के अंदर जब ढुका तो दरबार लोग जो है, जो लोग पहरादार है, चौकीदार है, ये लोग जो है घबरा गए कि बाग रहते हुए बहुत बड़ा बाग भागा हुआ है फिरौन के घर के सामने, तो ये दो शख्स दो इंसान कैसे ढूंढे तो पहरादार चौकीदार फिरौन का मूसा और हारून को बहुत कोशिश किया कि घर से निकाल दे, मगर नहीं कर सका। मूसा और हारून ने यही बात कहा फिरौन के चौकीदार को, फिरौन के पहरादार को यही बात कहा कि हम लोग अल्लाह की तरफ से नबी है, अल्लाह हम लोगों को नबी करके भेजा है, रसूल करके भेजा है, हम लोग आए हैं हिदायत देने के लिए। ये बात जा करके फिरौन के कहा हम दोनों भाई को फिरौन के नजदीक ले चलो और नहीं तो फिरौन को हम लोग के नजदीक भेजो। ये दोनों में कोई एक बात करो कि हम लोग ले चलो फिरौन के नजदीक या फिरौन को हमारे नजदीक ले आओ। ये बात फिरौन के नजदीक जब पहुंचा तो फिरौन कहा वो बुलाएगा, वो तो मसला पे बैठा है, वो तो अपने आप को खड़ाई का भी किया है, बुलाएगा। वो बोला लाओ तो शख्स कौन है, लाओ उसको हमारे नजदीक बुलाओ। मूसा और हारून फिरौन के नजदीक पहुंचा और पहुंच करके मूसा और हारून बहुत मुलायम के साथ, बहुत नरमी के साथ फिरौन के साथ जो है दीन इस्लाम के बात किया। मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत किए बहुत नरमी के साथ। फिरौन का मन जो है नरम हुआ, फिरौन का मन जो है नरम हुआ, फिरौन जो है दिल में इरादा हुआ कि अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को मान ले, मूसा के जो खुदा है उसको मान ले। मगर फिरौन का जो वजीर है अजान दीजिए, अजान पर इंशाअल्लाह नमाज हम पढ़ा होगा अजान दीजिए। आज इस जमाने में अल्लाह के वली मौजूद है, इस जमाने में अल्लाह के वली मौजूद है और हर जमाने में अल्लाह के वली मौजूद था, हर जमाने में अल्लाह के वली मौजूद था, हर जमाने में अल्लाह के नबी के जमाने में नबी मौजूद थे, रसूल के जमाने में रसूल मौजूद थे और औलिया अल्लाह के जमाने में अल्लाह के वली मौजूद है। ऐसा कोई जमाना नहीं है कि अल्लाह रसूल नहीं भेजा, ऐसा कोई जमाना नहीं है कि अल्लाह नबी नहीं भेजा, ऐसा कोई जमाना नहीं है कि अल्लाह कोई रसूल नबी नहीं भेजा। कोई जमाना खाली नहीं है, हर जमाने में अल्लाह हिदायत करने वालों को भेजा है। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि नबी के जमाने में नबी को नहीं माना, रसूल के जमाने में रसूल को नहीं माना, और ये आखिरी जमाना में बहुत से लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के वलियों को नहीं मानता है, बल्कि हंसी ठट्टा यारी मजाक करता है। क्या करता है? क्या साहब? हंसी करता है, ठट्टा करता है, मजाक करता है, यारी करता है, बहुत सा हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, ठट्टा करता है। अल्लाह कहा या हसरत वाले बात, आय अफसोस करो उन बंदों की जो लोग पीर मुर्शिद को देख के
अल्लाह के वली को देख के हंसी ठाट्टा मजाक करता है, नबी रसूल को देख के हंसी ठाट्टा यारी मजाक करता है। अल्लाह कहा उस बंदों पर हमारा अफसोस हो, उस बंदे पर हमारा अफसोस है। या हसरत वाले वादे आए अफसोस हो उन बंदों मा यातिहिम मिन रसूलिन। हसरत के मैदान में अल्लाह पूछेगा, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह पूछेगा जो लोग इस दुनिया में नबी रसूल को पीर औलिया को देख के हंसी ठाट्टा किया, हंसी ठाट्टा किया, कल हसरत के मैदान में सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहा या हसरत वाले वादे आए अफसोस हो उन बंदों के, अल्लाह का अफसोस है उस बंदा पर। मा यातिहिम मिन रसूलिन, क्या है मा यातिहिम मिन रसूलिन, कि नहीं आया उनके पास कोई, तुम्हारे नजदीक का रसूल नहीं आया था हिदायत करने के लिए, तुम्हारे नजदीक क्या नबी नहीं कहा था हिदायत करने के लिए, तुम्हारे नजदीक क्या पीर मुर्शिद हिदायत करने के लिए नहीं आया था। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेके पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेके आए, दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर लेके आए और ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेके आए और आखिरी जमाने का पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ कुरान फुरकान लेके आए। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सहीफा दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह जबूर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह इंजील दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तौरात दिया और आखिरी जमाने के पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये कुरान फुरकान दिया, ये कुरान नबी दिया। ये सही आसमानी किताब है, तौरात जबूर इंजील सहीफा कुरान शरीफ ये सब आसमानी किताब है। नबी आए कुरान लेकर के और नबी के बाद हमारे रसूल नबी कुरान लेकर हिदायत कर रहे हैं। मगर बहुत से लोग ऐसा है कि देख के हंसी करता है, ठट्टा करता है, मजाक करता है, हंसी ठट्टा मजाक करता है, यारी करता है। इन लोगों को हसरत के मैदान में खुदा के नजदीक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्यों हंसी किया, क्यों ठट्टा किया, क्यों मजाक किया? आए अफसोस ऊपर उन लोगों की, उस इंसान पर अल्लाह का अफसोस है। कि नहीं आया तुम्हारे नजदीक कोई रसूल, तुम्हारे पास का क्या कोई रसूल नहीं आया था, नबी नहीं आया था। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आखिरी जमाने के पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबी इमाम मुस्ताहिद इमाम तरीक़त गौस अब्दाल रकीब नकीब नजीब फरीद सईद कुल औलिया अल्लाह, हम अल्लाह सबको भेजा और आखिरी जमाने में हम अल्लाह औलिया अल्लाह को भेज रहे हैं, हमारे रसूल नबी को भेज रहे हैं। हज़रत के बयान में अल्लाह पूछेगा मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर के साथ उसके हंसी ठट्टा यारी करते। नबी आए थे, रसूल आए थे, पीर मुर्शिद आए थे, ताबी इमाम मुस्ताहिद इमाम तरीक़त गौस अब्दाल कुतुब रकीब नकीब नजीब फरीद सईद हर कोई आए थे, मगर कुछ लोग माना और कुछ लोग हंसी ठट्टा यारी में फंसे रह गए। कुल्लु मरीम में कसबर दीन, कुल्लु मरीम में कसबर दीन, हर एक आदमी कसब बोले के गिरफ्तार है यार मोहम्मद, हर आदमी कसब बोले के गिरफ्तार है। एक आदमी एक काम में गिरफ्तार है, चोर जो है चोरी करने में गिरफ्तार है, चोर चोरी करने में गिरफ्तार है, डकैत जो है डकैती करने में गिरफ्तार है, उसी काम में फंसा हुआ है। और खेती बाड़ी करने वाला इंसान, चाष आबाद करने वाला इंसान वो चाष आबाद में फंसा हुआ है, कुरान बयान करने वाला इंसान वो कुरान बयान करने में फंसा हुआ है, और कुरान सुनने वाला इंसान वो कुरान सुनने में फंसा हुआ है। हर आदमी अपने अपने कसब में, अपने अपने काम में फंसा हुआ है। कुल्लू गरीब में कसब नहीं, हर आदमी कसब अपने के गिरफ्तार है। तो हंसी ठट्टा यारी मजाक करने वाला आदमी वो भी फर्क एक आदमी है, वो जो है उसका काम ही है कि पीर मुर्शिद को देख के हंसी ठट्टा करना,
पीर औलिया को देख के हंसी ठट्टा करना, नबी रसूल को देख के हंसी ठट्टा करना, वो उसी में गिरफ्तार है, वो उसी में गिरफ्तार है। तो अपने अपने काम में सब गिरफ्तार है। तो बेहतर काम तो ये है कि कुरान बयान करने में गिरफ्तार होना। सुभान अल्लाह। कुरान का बयान करने में गिरफ्तार हो जाओ और कुरान का बयान सुनने में गिरफ्तार हो जाओ। कुरान का बयान करने में या कुरान का बयान सुनने में गिरफ्तार हो जाओ। नमाज पढ़ने में गिरफ्तार हो जाओ, नमाजी नमाज पढ़ने में गिरफ्तार है, रोजेदार रोजे रखने में गिरफ्तार है, हाजी हज करने में गिरफ्तार है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इसका मतलब क्या है, क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इलाही हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, इलाही हम तेरे दरबार में हाजिर हैं। इन्नल हम्दा तमाम तारीफ, इन्नल हम्दा तमाम तारीफ, वन निअमता और तमाम नेमत, सारा आसमान जमीन का तारीफ, तमाम दुनिया का तारीफ और तमाम दुनिया का नेमत किसके वास्ते है? लकवल मुल्क, और तमाम मुल्क बादशाही अल्लाह के वास्ते है। सुभान अल्लाह। इन्नल हम्दा व निअमत लकवल मुल्क ला शरीका लक। इलाही तेरे वास्ते, तेरे नजदीक, तेरे सवा तू इलाही इलाही है, तेरे साथ कोई शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह। तेरे साथ कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह के इबादत में गिरफ्तार हो जाना ही एक बड़ा बात है। अल्लाह आज हम लोग उस भगवान के हमारी में कुरान सुनने में गिरफ्तार है, उस भगवान के हमारी में आज हम लोग कुरान सुनने में, कुरान पढ़ने में गिरफ्तार है। सुभान अल्लाह। ये मरहबा सुनिए सुनिए, हमारा दादा हुजूर सूफी भगवान का हमारे रहमतुल्लाह अलैह आप बयान भी किए हैं और किताब में लिख भी दिए हैं कि हम तरीकत के कारखाना में बंदी हैं। तरीकत के जो कारखाना है, कोई दुनिया में कोई इंसान अगर गुनाह करे, दुनिया में कोई इंसान अगर जुल्म करे, गुनाह करे, अगर किसी को मर्डर कर दे, किसी को खत्म कर दे, तो क्या क्या सजा होगा? उसको जो है जेल खाना में बंदी किया जाएगा, जेल खाना में सेंट्रल जेल में उसको बंद किया जाएगा, यही उसका सजा है। बोलिए जी, सेंट्रल जेल में उसको सेंट्रल जेल का हवा खाना पड़ेगा, जेल में कैद खाने में वो बंदी रहेगा। और सूफी भगवान का हमारे रहमतुल्लाह अलैह आप कहते थे कि हम तरीकत के कैद खाने में बंदी हैं। तरीकत के कैद खाना में अल्लाह हमको बंद करके रख दिया है और इसी कैद खाने से हम हुक्म कर रहे हैं। कैद खाने से, तरीकत के कैद खाने से हम हुक्म कर रहे हैं कि तुम लोग आओ और हमारे दरबार में आके हमारे मुंह से कुरान सुन लो, कुरान सुन लो। अगर हमारा मुंह से कुरान सुन लोगे, इसलिए कि ये कुरान का बयान हमारा मुंह से होता है, मगर ये खुदा की तरफ से जारी है, अल्लाह की तरफ से ये कुरान का बयान जारी है। अगर तुम लोग कुरान का बयान सुन लोगे हमारे मुंह से, तो अल्लाह ताला तुम लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। तो आज वो दिन है, मुर्शिद सलाम फरमाया अहमदी साहिब, आप भी तरीकत के कारखाना में बंदी है। ये जो घर में है जा रहा है, ये जो मुल्ले शरीफ में है जा रहा है, ये तरीकत के कारखाना है, ये तरीकत के कारखाना है। सलाम फरमाया अहमदी साहिब हर वक्त खाइए, ये कारखाना में बंद है। आप लोग जब भी आइएगा, जिस वक्त आइएगा, मुर्शिद सलाम फरमाया अहमदी को इस कारखाने में पाइएगा, खाना में पाइएगा। और इसी कारखाना से मुर्शिद सलाम फरमाया अहमदी साहिब आप लोगों को ऐलान किए हैं और खबर दिए हैं कि आओ तुम लोग आकर के हमारे मुंह से कुरान सुन लो, सुन लो। अल्लाह की तरफ से हम जो बयान करेंगे तुम लोग सुन लो, तुम लोगों को भी अल्लाह बेहिसाब जन्नत में डालेगा। जो लोग इस मजलिस में हाजिर है और कुरानी मजलिस में हाजिर है, कुरान सुन रहे हैं, ये कुरान साक्षी दे रहा है, खुदा अल्लाह अर्श में हाजिर है। आप लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा। ये मरहबा
से जरा जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएगा, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएगा उसको क्या मिलेगा? बोलिए, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएगा क्या मिलेगा, क्या पाएगा? हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे हैं और ना बोलने की जरूरत है। जो कुरान में है वही बोले, जो कुरान कहता है वही वो बात हम भी कहते हैं अल्लाह की तरफ से। इन्हीं बात के आमद ईमान लाए हम, मेरा बिल्कुल साथ साथ तुम्हारे लिए, मेरा बिल्कुल साथ साथ तुम्हारे लिए फसलों को सुन से अल्लाह कहा कि जो लोग हमारे ऊपर ईमान लाएगा, जो लोग हम पर ईमान लाएगा, हमारे कुरान पर ईमान लाएगा, हमारा नबी पर ईमान लाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, अल्लाह कहता है फस्मऊ, तुम लोग सुन लो। क्या सुनो? कहा गया उस मर्द को के दाखिल हो जाओ जन्नत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के दाखिल हो जाओ बहिश्त में। जो लोग हम पर ईमान लाएगा, हमारा कुरान पर ईमान लाएगा, हमारा नबी पर ईमान लाएगा, फस्मऊ, तुम लोग सुन लो। क्या सुनो? अल्लाह सुना भी दिया है कुरान में कि लदखुल जन्नह, कहा गया उस मर्द को दाखिल हो जाओ जन्नत में, दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। कौन सा जन्नत में? जिस जन्नत में आला हजरत हमारे पीर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाओ, उस जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि कहा गया उस मर्द को कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। अब सुनिए, यहाँ पर अल्लाह कहा गया उस मर्द को कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। क्या जन्नत में मर्द दाखिल होगा? क्या जन्नत में मर्द दाखिल होगा? औरतें दाखिल नहीं होगा। जन्नत में औरत और मर्द दोनों ही दाखिल होगा। हमारे दादा हुजूर सुनी रहमतुल्लाह अलैह, आप कुरान के बलिष्ठ थे, आप मुहक्किक के कुरान थे। आप कहते थे अगर कुरान में मर्द का बयान है तो औरत को लेकर बयान करना, सुभान अल्लाह, कुरान में औरत का बयान है तो मर्द को लेकर बयान करना। कभी बयान जो है दुरुस्त होगा, बयान जो है कामिल होगा। तो सुभान अल्लाह, अगर यहाँ औरत मर्द का बयान किया है, अगर औरत का बयान करे इसी के साथ तो ये जो है 6666 जो आयत है, आयत जो पढ़ जाएगा 6666 आयत पढ़ने का इंसान भोज नहीं मिलता। और पढ़ जाए और आयत पढ़ जाए तो और भी पढ़ने का इंसान भोज मिलेगा नहीं। इसीलिए अल्लाह कहा कि जहाँ औरत का बयान है मुहक्किक का चाहिए, मुहक्किक को चाहिए जहाँ औरत का बयान है वो मर्द को लेकर बयान करे, जहाँ रात का बयान है दिन को लेकर बयान करे, जहाँ आसमान का बयान है वहाँ जमीन को लेकर बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मरहबा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कहा कि जन्नत में जो लोग जाएगा उसको उसकी इज्जत और मर्तबा हम अल्लाह बढ़ा देंगे। जन्नती का जो जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह उसकी इज्जत और मर्तबा को अल्लाह बहुत बुलंद कर देगा। ये मरहबा, सुनिए, अच्छा सुनिए आप लोग, पागड़ा चली रहो ना, सुनिए जी, आप लोग अच्छा सुनिए। আর বাংলা হবে না, আর উর্দু গান হবে সারা বছর বাংলাতে শোনাচ্ছি, আজ উর্দুতে হবে। আজ উর্দুতে কেন এই জন্য বলছি, অনেক দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে, অনেক বিহারি লোক আছে, বাংলা বলে ওনারা বুঝবেন না। আপনারা তো সবসময় শুনছেন, আপনারা তো ধর্ম শুনছেন, ওনারা বছরে একবার এসেছেন, খেয়াল করে জি বলবেন জি, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমার ইনশাআল্লাহ বাংলাতে হবে সারা বছর। শুনুন, আমার দাদা হুজুর সুফি ফারাক রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি তো উর্দু তো গান করতেন, উনি তো বাংলা গান করতেন, উনি উর্দু তো গান করতেন। আর এখনকার বাংলা মানুষ
এখনকার বাংলা মানুষ এমন কেউ নেই উর্দু বোঝে না, সবাই বোঝে, বলতে না পারলেও বোঝে, অনেকে বলতেও পারে। আর আমাদের সাহেবের আমলে বাংলার মানুষ না উর্দু বলতে পারতো না, বুঝতে পারতো, কিন্তু তারপরেও যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ওখানে বুঝবে। শুনুন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, और आपको क्या अल्लाह विवेक दीजिए, आप लोगों को अल्लाह अकल दिया है, समझ दिया है, अपना अकल और समझ से देखिए और समझिए, देखिए और समझिए। किसी इंसान के बात में पढ़ना नहीं है, किसी के बात में पढ़ना नहीं है, और न किसी के बात सुनना है, बात में पढ़ना है अल्लाह का बात में, अल्लाह के बात में पढ़िए, अल्लाह का कुरान को समझिए। सुभान अल्लाह। ये कुरान क्या कहा, अल्लाह के कुरान क्या कहता है? अल्लाह के कुरान यही कहता है कि जिस दरबार में कुरान खुला हुआ हो, जिस दरबार में कुरान बंद है, वो दरबार में हाजिर ना होना चाहिए। जिस दरबार में कुरान का वर्ड खुला हुआ हो, उसी दरबार में हाजिर हो जाना चाहिए, उसी दरबार में हाजिर होना चाहिए, ताकि हम लोग दूसरे बोल तूर पहाड़ का कसम खा के अल्लाह कहता है, तूर पहाड़ का कसम खा के अल्लाह कहता है, जिसको अल्लाह जबल तूर कहा है, जबल मन पहाड़, तूर पहाड़ का जबल तूर का कसम खा के अल्लाह कहता है, व किताबिन मस्तूरिन, व किताबिन मस्तूरिन, और किताब लिखी हुई के अरे मोहम्मद, और किताब लिखी हुई की, व किताबिन मस्तूरिन, और किताब लिखी हुई की। अल्लाह कहता है, तूर पहाड़ का कसम खा के अल्लाह कहता है, ये कुरान किताब हम ही लिखा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह लिखा है, अल्लाह तूर का कसम खा के कहता है, फिकिरातिन मनसूरी वो फिकिरातिन मनसूरी वो, बीच वरक खुले हुए के अरे मोहम्मद, बीच वरक खुले हुए के। ये आयत माने फिकिरातिन मनसूरी, फिकिरातिन मनसूरी, बीच वरक खुले हुए के। वरक माने पाता, ये पाता আছে না, এই পাতাকে বলে আরবিতে রাকিব মানে পাতা, আর উর্দুতে বলে ওয়ারাক, বাংলায় বলে পাতা। রাকিব মনসুরি, बीच वरक खुले हुए थे। যে দরবারে যে জায়গায় এই কোরআন শরীফের ওয়ারাক, কোরআন শরীফের পাতা খোলা আছে, जिस दरबार में जिस मजलिस में कुरान खुला हुआ है, उसी दरबार में जाकर बैठेंगे तो बेशक हम लोग फौजुल अजीब मुराद पाएंगे। सुभान अल्लाह। और बैतुल मामूर है, और बैतुल मामूर क्या है? वो फरिश्तों का नमाज पढ़ने का जगह है। बैतुल मामूर फरिश्तों की नमाज पढ़ने का जगह है। फरिश्तों की नमाज पढ़ने का जगह क्या कहाँ है? 7 तबक आसमान के शेष सिवाना जो है यहाँ पर है, यहाँ 7 तबक आसमान खत्म हो रहा है, उसके ऊपर बैतुल मामूर है, और उस बैतुल मामूर फरिश्तों का नमाज पढ़ने का जगह है। ये जो ईदगाह है, दुनिया में जितने ईदगाह है, आज दुनिया में जितने मदरसे माने मस्जिद है, तमाम मस्जिद और ईदगाह के बराबर सीधा 7 तबक आसमान के शेष सिवाना में बैतुल मामूर है, और उसी बैतुल मामूर जो है फरिश्तों की नमाज पढ़ने का जगह है। आमीन अल्लाहुम्मा ওয়া আলাইহি ইল্লা বালাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার হুজুর কিবলা জামানের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা সৈয়দ সাহেব সালাম ফারুক ওয়াহাব রহমান সাহেব এখনই মিম্বরে চলে আসবেন, এখনই তাকবীর দেওয়া হবে।